Let's take up exercise 6.3 questions 10 to 13 in this video. Question number 10 says CD and GH are bisectors of angle C and angle G, and also triangle ABC is similar to FEG, and we have to show three parts. So first of all, let us write down the given and to prove. As I told you, it's very important to write what is given and what we want to prove. So given is CD bisects angle ACB and GH bisects angle FGE. We don't need to write the language part of it, we just need to write mathematically. Also we are given that triangle ABC is similar to triangle FEG. So these three things are given to us and we have to prove certain parts. Let's take them one by one. So first to prove is CD upon GH is equal to AC upon FG. Now we can get the ratio either by BPT or by similarity. There is no scene of BPT because there is no parallel line or something. So we should go towards similarity. For that we want to know which triangles we should consider. Here we are having three triangles. This triangle CDA, CDB and complete ABC. So which one we should take so that we get this ratio? For this I told you one tip in the previous videos also, that you consider CD and AC. Try to make this combination. CDA, is there any triangle CDA? CDA, yes. And similarly GH and FG, GHFG, is there some triangle formed by these four alphabets? Yes. So this gives us hint that we should consider triangle CDA and GHF. So let us consider them and try to prove them congruent. So in triangle CDA and triangle GHF, let us look for the matching parts. CDA is angle A and GHF angle F. These two are equal. Can you tell me why? Because triangle ABC is similar to FEG, so angle A is equal to angle F. So this is our first matching part. Angle A is equal to angle F. Reason हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे because triangle ABC is similar to triangle FEG and these are CPST, corresponding parts of similar triangles. Now let's look for second matching part. Clearly ratio तो हमको prove करना है, we have to prove the ratio. तो ये तो हम use नहीं कर सकते. We need one more angle. तो just see which another angle is possible. तो हम ट्राई करेंगे एंगल 2 और 4 को प्रूव करने की. तो उसका क्या लॉजिक रहेगा? एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4. इसका लॉजिक रहेगा अगेन एंगल C इज इक्वल टू एंगल G. इसका भी आगे हम रीजन दे देंगे यहीं पे बाय CPST एंड हाफ एंगल C विल बी इक्वल टू हाफ एंगल G. हमने 9th के यूक्लिड में किया था, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल. So if angle C is equal to angle G, then half of angle C must be equal to half of angle G, and clearly angle 2 is half of angle C because CD and GH are bisectors. तो ये भी हम यहीं पे लिख देंगे and CD and GH are bisectors. Bisectors of angle. Bisectors of angle C and angle G. तो हमने बिल्कुल, आप चाहें तो इस पूरे को अलग से भी प्रूव कर सकते थे, बट हमने इसको यहीं पे कर दिया. ठीक है. So ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय डबल ए रूल. अब देखिए हमारे पास कौन से ट्राइंगल सिमिलर आए हैं. ट्राइंगल CDA सिमिलर आया है ट्राइंगल GHF के. ये ऑर्डर करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब यहाँ से हम रेशियो ले लेंगे, ये हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं. CD अपॉन GH फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स इज इक्वल टू DA अपॉन HF, बट ये हमें चाहिए नहीं, हमें जो चाहिए हम वही ध्यान में रखेंगे. इज इक्वल टू कॉर्नर अल्फ़ाबेट AC अपॉन GF या FG एक ही बात है. ठीक है. GF या FG एक ही बात है. Hence prove the first part. Now let's go on to the second part. Second part says triangle DCB is similar to triangle HGE. तो देखते हैं ये कौन से पार्ट्स हैं, फिगर में देखते हैं. Triangle DCB, I am talking about this triangle, and HEG, I am talking about this triangle. Now this should be easy for you. It is just like what you have done above in the first part. ये एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा बट आई विल राइट इट क्विकली फॉर यू गाइज. इसका प्रूफ आप देखिए. तो हमेशा हमारा फॉर्मेट यही रहता है इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE. लेट्स गेट द मैचिंग पार्ट्स. हमारे पास है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E
इसका रीजन बाय CPST आ जाएगा, ऊपर मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसका रीजन एंगल C इज इक्वल टू एंगल G एंड हाफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल G। सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर by AA rule. Got it? For the third part. Now see, third part is something which we have already proved. तो यहाँ पे HGF, DCA is similar to HGF, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे proved above. Simply writing proved above will do. Alright? So I hope you get this entire question. आप इसको आराम से स्लो मोशन में या पॉज करके देख सकते हो and try to do it on your own. Okay? See question number 11. It says E is a point on side CB produced of isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. AD and BC are perpendicular, EF and AC are perpendicular, and we have to prove this. So straight let's write down given to prove. Right? So let us see what is given to us. Mathematically हमें लिखना है given is AB is equal to AC. AD इज परपेंडिकुलर टू BC और इसे फिगर में शो भी कर दीजिए जिससे आपको सोचने में आसानी रहेगी। एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ये हमने शो कर दिया। एंड AB इज इक्वल टू AC को हम ऐसे सिंगल निशान लगा करके शो कर देंगे। ओके, नाउ व्हाट इज टू बी प्रूव्ड? टू प्रूव क्या है हमारा? टू प्रूव है हमारा ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। प्रूफ देखते हैं। मैंने आपको एक टिप बताई थी पिछले वीडियोस में कि जब हमें प्रूव में ऑर्डर दिया होता है तो इससे हमें बहुत बड़ा हिंट मिल जाता है। यानी कि हमारा एंगल A E के इक्वल होना चाहिए, B C के इक्वल होना चाहिए, D F के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लियरली रेशियो का कोई सीन नहीं है। जहाँ आपको दो 90 के एंगल दिए हुए हैं आपको AA रूल की तरफ सोचना चाहिए। तो पहले तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। नाउ लेट्स थिंक ऑफ द मैचिंग पार्ट्स। ABD का एंगल 1 और ECF का एंगल 2। यू मस्ट यूज एंगल 1 2 टाइप्स नोटेशन, बहुत ईजी रहता है ये, और इसका रीजन हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री ईच। रादर देन राइटिंग ADBEFC, आप सोचते रह जाओगे व्हाट हैव आई टॉक, बट इफ आई से एंगल 1 इज इक्वल टू 2 तो बड़ी इजीली आप एक ग्लांस में आप देख सकते हो कि मैं किन एंगल्स की बात कर रही हूँ। अब देखिए मुझे एंगल D और F इक्वल मिल गए। अब या तो मेरे पास A और E इक्वल हों, ठीक है, या B और C इक्वल हूँ। अब ABD का एंगल A और ये इसका तो मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है, हैं तो ये इक्वल, बट मेरे पास इनका कोई रीज़न भी तो होना चाहिए। आई डोंट हैव, बट ABD का एंगल B और ECF का एंगल C, यस इसका रीज़न है मेरे पास। तो मेरा सेकेंड मैचिंग पार्ट हो गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और इसका रीज़न क्या आएगा? बिकॉज AB इज इक्वल टू AC, एक तो हमें ये गिवन है और हम यहीं पे सब कुछ लिख देंगे। एंड एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। ये आपने 9th क्लास में रिजल्ट किया हुआ है और आपको सभी रिजल्ट्स की जो स्टेटमेंट है वो ज़रूर लर्न होनी चाहिए। Therefore triangle ABD is similar to triangle ECF by AA rule, hence proved. So I hope you understand this one as well. Let's consider question number 12. Let's see what it says. It says that AB and BC and median AD are proportional to PQ QR and median PM. We have to show that triangle ABC is similar to PQR. तो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास कि AB and BC and median AD किसके प्रोपोर्शनल है? PQ QR and median PM। यानी कि AB अपॉन PQ, इसी चीज़ को मैथमेटिकली लिखेंगे, इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। एक तो हमें ये तीनों रेशियोज गिवन है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें गिवन है AD एंड PM आर मीडियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। और हमारा टू प्रूफ क्या है? हमें प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, नाउ सी, आप इन दोनों रेशियोज को ध्यान से देखिए। AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, ये तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। तो SAS रूल लगाने के लिए अगर हमारा एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो जाए किसी तरह तो हमारा SAS रूल लग जाएगा, राइट। सो हमारा पर्पस क्या बन गया? टारगेट की ट्राइंगल ABD को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल PQM के।
तो ये सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस कंसिडर कि हम ये कैसे सिमिलर कर सकते हैं। तो देखिए मुझे गिवन क्या है, मैं गिवन जो है उसी से प्रूफ शुरू करती हूँ। मुझे गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये मुझे गिवन है, इसका रीज़न लिख देते हैं हम गिवन। बट कैन आई से दैट BC अपॉन QR इज इक्वल टू ट्वाइस BD अपॉन ट्वाइस QM? मैं कह सकती हूँ ये बात, 2 से 2 कट गया यानी कि BD ओवर QM। यस, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस इन 1, पुट इन 1। तो मेरी फर्स्ट वाली रेशो क्या बन गई, AB ओवर PQ मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, BC ओवर QR की जगह लिख दिया BD ओवर QM, और AD ओवर PM एज इट इज कॉपी कर लिया। कुछ नहीं किया, सिर्फ BC ओवर QR को मैंने इंटरचेंज कर दिया, दैट्स ऑल। Right? So now can I say that therefore triangle ABD is similar to triangle PQM by triple S rule, isn't it? And hence I get angle B is equal to angle Q by CPST, corresponding parts of similar triangles. Now you consider जो हमें प्रूव करने हैं ट्राइंगल ABC और PQR, दो रेशोज हमें ऑलरेडी दी हुई हैं और इनका कॉमन एंगल B एंगल Q के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, हमारा काम बन गया। तो लेट अस सी। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR व्हाट डू वी हैव, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इसका रीजन आ गया गिवन। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इसका रीजन आ गया प्रूव्ड above. Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity rule. So I hope this is clear to you. This is a very very important question. एक चीज़ की तरफ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ इसमें, कि इसमें जो ये दो साइड्स हैं AD और PM जो है, ये इनमें से एक साइड को मीडियन बना रहे हैं। इसी को अगर हम थर्ड साइड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 बन जाता है, जो कि बिल्कुल इससे फिर अलग हो जाता है। प्लीज चेक आउट द वीडियो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 एज वेल। तो चलिए लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। द स्टेटमेंट इट सेज D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो लेट्स मेक अ ट्राइंगल ABC। हमने बना लिया ABC, D कोई पॉइंट है BC के ऊपर सच दैट, फिगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू BAC। एंगल ADC यानी कि एंगल 1, तो हमें गिवन क्या हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल BAC। BAC को मैं कोई नाम नहीं दे रही क्योंकि कंप्लीट एंगल है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। जहाँ पे सिंगल एंगल बन रहा है वहाँ पे हम इजीली नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें गिवन हो गया एंड वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, राइट। सो फर्स्ट लेट्स एनालाइज द क्वेश्चन। तो स्क्वायर हमें कैसे मिल सकता है, पाइथागोरस थ्योरम से जो आप आगे पढ़ोगे, बट यहाँ तो कोई एंगल 90 नहीं है, या फिर हमें किसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी CA 2 बार आ रहा है। ये एनालिसिस क्वेश्चन का आप समझ लीजिए कि CA इंटू CA अगर लिख दूँ मैं इज इक्वल टू CB इंटू CD, तो जब भी आपने ऐसा प्रोडक्ट प्रूव करना है तो आप एक CA को CB के साथ मिला दीजिए। क्या ट्राइंगल बन गया CA और CB को मिला के, CACB यानी कि CAB, तो एक ट्राइंगल हमें ये मिल गया। और एक CA को आप CD के साथ मिला दीजिए यानी CACD, तो CAD, एक ट्राइंगल हमें ये मिल गया। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है इस क्वेश्चन में, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि विच ट्राइंगल्स टू टेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्राइंगल्स, कि हमें कौन से लेने हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो अब हमें ये पता चल गया। अभी हमें ऑर्डर नहीं पता तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ जैसे मर्जी, इन ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल CAD। मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका ऑर्डर क्या करेक्ट है। मैचिंग पार्ट्स ढूंढते हैं। CAB और CAD में एंगल C सेम आ रहा है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C आ गया मेरा कॉमन, और CAB का एंगल A और CAD का एंगल 1, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1 मुझे गिवन है, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। सो ट्राइंगल CAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल डैश, अभी मैं छोड़ रही हूँ, बाय डबल A रूल। अब यहाँ पे हम ऑर्डर करेक्ट करके लिखते हैं। देखिए C की जगह पे तो आएगा C, ठीक है ना। अब एंगल A किसके इक्वल है, D के इक्वल है, तो A की जगह पे मैं लिख दूंगी D, बचा क्या, A बच गया,
तो ए यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑर्डर था। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी कटिंग करके इसको ठीक भी कर सकते हैं और चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम सिर्फ इन ट्राइंगल कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये सिमिलर हैं। तो ये आप करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे उसको कटिंग करके कोई इशू नहीं है। तो ये अब हमारा रेशो लिखना बहुत आसान है, मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। पहले दो अल्फ़ाबेट CA अपॉन CD, फिर दूसरे दो अल्फ़ाबेट AB अपॉन AD। बट आप देख सकते हो हमें AB अपॉन AD की ज़रूरत नहीं है, तो मैं छोड़ देती हूँ। अगर आप लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। और तीसरा आ गया कॉर्नर एलिमेंट्स, यानी कि BC अपॉन AC। अब आप देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, CA AC एक ही बात होता है, तो ये हमें मिल गया CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ्ड। So this was a very easy question, but it contained lots of concepts. So I hope you understand these. So please students just remember that geometry is to be understood. Geometry जो है वो purely understanding का काम है, ठीक है, बिल्कुल क्रैमिंग आपने नहीं करनी है। एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ लाइक द वीडियो, इट गिव्स मी मोटिवेशन। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ कमेंट, चाहे आप एक शॉर्ट कमेंट कर दीजिए, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सो दैट इट रीचेज द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली नीड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोज़ ऑल्सो। ज्योमेट्री आप पूरा लिख करके खुद समझ के कीजिए। थैंक यू सो मच।